Hello friends, I am Miss Honey. Would you like to learn about the place value and face value of a digit in a number today? Yeah, so let's begin. First, let me tell you what we mean by the place value of a digit. Place value is the value of the digit according to its position in the number, such as ones, tens, hundreds, etc. Let us understand this with the help of a number. Let us take the number 346. We write the number 346 in the place value chart as number 3 in the hundreds column, number 4 in the tens column, and number 6 in the ones column. Now, let us look at the place value of each digit. As the number 3 is in the hundreds column, it means that there are 3 hundreds, and so its place value is 3 into 100, that is 300. As the number 4 is in the tens column, it means that there are 4 tens, and so its place value is 4 into 10, that is 40. As the number 6 is in the ones column, it means that there are 6 ones, and so its place value is 6 into 1, that is 6. Now, let's try to solve one more example. Number 605. Let us place each number in its respective column. So, number 6 goes in the hundreds column, number 0 in tens column, and number 5 in the ones column. The place value of number 6 is 6 into 100, that is 600. The place value of number 0 is 0, as there are 0 tens. The place value of number 5 is 5 into 1, that is 5. Now, let us learn what the face value of a digit is. The face value of each digit in a number is same as the digit itself. Let us look at the number 346 again to understand this. As you know already, number 3 is placed in the hundreds column, number 4 in the tens column, and number 6 in the ones column. But the face value of a digit is the same as the digit itself, irrespective of where it comes in the place value chart. So, the face value of digit 3 is 3 only. The face value of digit 4 is 4 only. And the face value of digit 6 is 6. Now, let us solve one more example. Look at the number 890. Here, the face value of digit 8 is 8. The face value of digit 9 is 9. The face value of digit 0 is 0. Wow! Wasn't it easy to understand the place value and face value of a digit?
आज मैं आपके लिए लाई हूँ कि बच्चों को आप प्लेस वैल्यू कैसे इजीली सिखा सकते हैं। तो पहले हम 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 45 लिखा है, तो 5 के लिए हम बच्चे को सिखाएंगे 5 वंस, और 4 के लिए लिखाएंगे हम 4 टेंस। तो हमें बच्चे को सिखाना है जो लास्ट नंबर होता है ये वंस की प्लेस होती है, और जो उसके बाद होता है वो टेंस की प्लेस होती है। इसके लिए हम बच्चे को इस तरीके से भी क्लियर कर सकते हैं 5, और क्योंकि ये है 4 तो इसके आगे हम लिखेंगे 4, और जितने भी उसके पीछे नंबर है ना उतने हम 0 लगा देंगे। इससे क्या होगा, इसके पीछे एक नंबर है तो ये 0 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, 4 टेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं 87। 7 के लिए हम बच्चे को बोलेंगे 7 वंस, और क्योंकि इसके पीछे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 7, और 8 के लिए हम लिखवाएंगे 8 टेंस। ये आप बोल सकते हैं 8, इसके पीछे एक नंबर है तो इसके पीछे हम लगा देंगे 0, तो ये हो गया 80 की प्लेस। इसी तरीके से आप बच्चे को एक तरीका और भी होता है सिखाने का, वो मैं आपको बता देती हूँ। 5 to 52 जैसे ही लिखा हुआ है तो हम बच्चे को बोलेंगे ये है वंस की प्लेस, ये है टेंस की प्लेस, TO। इस तरीके से हमने लिखना सिखाना है, और इसके अगर आगे लिख जाता है 1 तो ये हो जाएगी 100 की प्लेस, HTO। ये बहुत अच्छा तरीका होता है। अब मैं आपको सिखा देती हूँ कुछ ऐसे तरीके जिससे आप बच्चे को चेक कर सकते हैं कि उसे समझ में आया है कि नहीं, मतलब बेसिकली आप उसका टेस्ट ले सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है टेस्ट लेने का। आप इस तरीके से बच्चे को समझा सकते हैं, इन 29 9 इज एट डैश प्लेस। मतलब 29 में बच्चे को बताना है हमें कि वो 9 कौन सी प्लेस पे है, वंस की प्लेस पे है कि टेंस की प्लेस पे है। अब बच्चा यहाँ पे 9 देखेगा और देखेगा इसके पीछे कुछ नहीं है तो वो समझ जाएगा कि ये है वंस की प्लेस। इसी तरीके से इन 75 7 इज एट डैश प्लेस। अब यहाँ पे लिखा है 7, उसके पीछे है एक नंबर, तो मतलब ये हो गया है 70 70, मतलब यहाँ पे आ जाएगा टेंस प्लेस। इस तरीके से हम दे सकते हैं। और इस तरीके से आप एक तरीका और भी है, ये सिंपल सा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 95। अब 9 क्या प्लेस पे है और 5 क्या प्लेस पे है, इसमें बच्चा लिखेगा 5 के लिए लिखेगा वो 5 वंस, और 9 के लिए वो लिखेगा 9, क्योंकि इसके पीछे एक नंबर है तो वो 0 लगा देगा और चेक कर लेगा कि ये है 9 टेंस। इस तरीके से 79 ये हो गया है वंस की प्लेस, और ये हो गया है टेंस की प्लेस। इसी तरीके से जब वो 3 डिजिट पे आ जाता है तब देख सकते हैं हम 6 के लिए वो लिखेगा 6, या लिख सकता है वंस। 8 के लिए वो लिखेगा 8 0, और 1 के लिए वो लिखेगा 1 0 0 100। तो ये हो गई है 100 की प्लेस, ये हो गई है टेंस की प्लेस, और ये हो गई है वंस की प्लेस। इसी तरीके से हम बच्चे को बीट्स के थ्रू भी सिखा सकते हैं, अबैकस के थ्रू भी सिखा सकते हैं। जैसे ये टेंस की प्लेस है और ये वंस की प्लेस है। अब मैं बच्चे को बोलूँगी इसमें उतने ही बीट्स बनाने के लिए। वंस की प्लेस पे आ गए 3 बीट्स, और टेंस की प्लेस पे आ गए 4 बीट्स। इस तरीके से तो बच्चा इस तरीके से यहाँ पे काउंट करके लिख सकता है कि कितने वंस हैं, 1 2 2 वंस, और कितने टेंस हैं, 1 2 3 3 टेंस, मतलब 32। यहाँ पे हम उसे बनाने के लिए दे सकते हैं, कितने वंस बनाने हैं उसने, 4 वंस, 1 2 3 4 वंस, और टेंस बनाने हैं उसने 2, तो वो लिख देगा 24। इस तरीके से आप टेस्ट भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 वंस और 1 टेंस। जैसे मैंने अभी आपको फिलअप्स बताए थे, ऐसे आप 3 डिजिट के लिए भी ले सकते हैं। इन 124 2 इज एट डैश प्लेस। तो 2 कौन सी प्लेस पे है, इसके पीछे एक नंबर है तो 1 0 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, तो मतलब ये हो गया है टेंस प्लेस। इन 198 1 इज एट डैश प्लेस, क्योंकि इसके पीछे 2 नंबर है तो ये हो जाएगा 100, तो इट मीन्स ये है 100 की प्लेस पे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बच्चे को ईजिली प्लेस वैल्यू सिखा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।